Dear students, good morning, yeah, good afternoon, yeah, good evening. Today we Good are afternoon. again going to start a new video, the rise of nationalism in Europe and the Italy unification we are doing now. What we are doing? We are doing Italy unification. What we are going to start Italy unification part 2. So Italy unifications what we have learned yesterday that I will recall it again today and then we will move forward. So as we have discussed during 1815, Italy was divided into small territories, small territories. And again, I want to repeat it. This Piedmont, Sardinia, these two areas were ruled by the Italian ruler, ruled by the Italian ruler, Victor Emmanuel II. Is ruled by the Italian ruler, Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II. And this area, Venice, Lombardy, Parma, Modena, Tuscany. Venice, Lombardy, Parma, Modena, Tuscany. These five areas were ruled by the Austrian Empire. Ruled by the Austrian empires. Again, I am repeating Lombardy, Venice, Parma, Modena, Tuscany. These are ruled by the Austrian Empire during that time. Just we are trying to understand how the Italy was divided into small territories and in which part who was the ruler ruling. That is what we are studying now. Understood? So this part was exactly ruled by Victor Emmanuel II, who was a Italian ruler. So basically, we can say this is ruled by Italy only. So it is no other rulers are there here. Lombardy, Venice, Parma, Modena, and Tuscany was ruled by the Austrian Empire. Getting number one and number two. This is the different rulers. But here one more thing, Parma, Modena and Tuscany was the client state of Austrian Empire. Parma, Modena, Tuscany. We can say PMT. Parma, Modena, Tuscany. These three are the client state of Austrian Empire. What is the meaning of client state? Client state is that these kingdoms are ruled by their own king, but they were under the Austrian empires. But Austrian empire's rules, regulations, everything will be followed by these kings. So that is why we can say, in other words, these are the puppet states. These are the puppet states. So number one and number two of the Italy is clear to you. We are moving to the third one. This is third one. Third part of the Italy was ruled by the Papal State. It was known as Papal States. Papal State means this. Who was the ruler here? Here was the ruler. Pope was the ruler. Who was the ruler? Pope was the ruler here. During that time, Pope has two powers. One is political power and another one religious power. During that time, popes are having two types of power. One is ruling power or another one is religious power. So here Papal State, who is ruling? Pope was ruling. Who was ruling? Pope was ruling. Nowadays also you peoples knows the holy city of the Christian peoples is the Rome. Nowadays also. Pope is appointed here always. So here, who is ruling this area? Pope was ruling. And Pope used to get support of France. Who is supporting? This France is supporting Pope because France also Catholic Christian people and Pope also Christian. That is why France used to support. Whenever Papal state get problem by the enemies or enemy is attacking, during that time, France used to send his army to the Pope and the Pope is getting prevented always. Right?
Then next point comes that this is a third and fourth part. Fourth part, which is yellow color, it was ruled by the Bourbon dynasty of Spain. Here is the Spain after the France. Bourbon dynasty of Spain ruled over this kingdom of two Sicily. So in this way, Bourbon dynasty in the Spain was the what relative, we can say, marriage, both marital relations was there between the France and Bourbon dynasty. Both the area of Bourbon dynasty were there, but here the Bourbon dynasty which is ruling, that is belongs to Spain. So in this way, what we have understood is Italy was divided into various small kingdoms during that time, that we have discussed yesterday. Again, one more thing comes, the whole Italy unification, the timeline, if we consider the timeline is that 1815 to 1871. I am going very slowly, try to understand. The timeline of the Italy unification starts from 1815 and Italy unified in 1871. The complete process of 1815 to 1871, we are going to learn. This is 19th century. This is 19th century. The Italy got unified in 19th century. The process of Italy unification starts in 1815 and Italy unified in 1871. Understood? So what are the causes of Italy unification? Anyway, there will be some causes, like Italy was a peninsula, causive geographic unit, as I will discuss here. Here you can see Italy was covered at this side with Mediterranean Sea, and this side also we can say Tyrrhenian Sea, and here Ligurian Sea, and here Adriatic Sea. That means this Italy was covered with sea three side and one side with land mass. This area is covered with Alp mountain range. Alp mountain range. This area was covered with Alp mountain range. If you are having any doubt, you can say, you can on your mic, you can say, excuse me, sir, then you can ask your doubt. If you ask me, I will be very happy if you are getting any problem. Right? That is why in Italian landmass is known as a peninsula, because it is covered by the three side water and one side land. That is why Italy landmass geographically is called a peninsula. Right? That is why we say it's a causive landmass, because it is completely protected landmass. That means enemies attacking of enemy is really very difficult, because this side ocean, here ocean, and this side Alp mountain, like India is protected by the Himalayan mountain range. The same thing, right? So the next point comes, this is the one of the region, we can say one of Italy unification. Most people speak different languages, but peninsula divided into competing states, as we have discussed how it is divided into small states. And one more region is that Napoleon's invasion, also one of the region of Italy unification, that we will discuss further. Vienna Congress, also one of the region for the Italy unification, we will discuss further. Revolution of 1848, also one of the region of Italy unification, that we will discuss further. And the spirit of nationalism, which was created among the Italian citizens, that is also one of the cause of Italy unification, that we will discuss. Understood? These are all the 4 points we will discuss just after. Okay, so let's get started briefly to understand that how Italy got unified, even though this much of variation of small states. Here again we can say the this small state, like this is the natural kingdom, natural area, which was known as ruled by the Italian ruler. Who was the ruler? Victor Emmanuel II. And here you can see Lombardy, Venice, Parma, Modena, Tuscany, Papal State, and Kingdom of Two Sicily, and the Corsica.
the island, the Corsica island belongs to who? Republic of France. Corsica island belongs to Republic of France. This is what for an identification, clear identification, I have given this slide. Then role of Napoleon in the Italian unification, let's study. As you know that in the France Revolution we have studied, in the previous also we have studied. France has a dream to become the emperor of Europe, not the emperor of only France. He wants to become the emperor of Europe. In that process, he invaded or attacked on Italy in 1796. He attacked on Italy in 1796. When he attacked on Italy 1796, नेपोलियन चचा बोले यार ये तो इटली छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है, मैं अभी कितने लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करूं देखने के लिए, हर एक जगह को कैसे मैनेज करूं, ये मेरे से तो होना नहीं है। नेपोलियन जब अटैक कर लिए तब ये सोचा कि ये छोटे छोटे टेरिटरी मेरे से तो होने से रहे, चलो इसको मैं मिलाकर बड़े बड़े टेरिटरी में डिवाइड कर देता हूं। What he has done, Napoleon, after invasion of Italy in 1796, the small territories merged and it becomes a big territory. मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े टेरिटरीज को मिला, छोटे छोटे टेरिटरीज को मिला, कुछ ऑन फिंगर टिप्स टेरिटरी को बना दिया। क्यों? क्योंकि अपना बिजनेस सही करने के लिए, अपना रूलिंग को और स्मूथली फंक्शन करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे टेरिटरी, बड़े बड़े टेरिटरी बना लिया, छोटे छोटे टेरिटरी को मर्ज कर दिया। मगर एक चीज ये समझना, ये जब छोटे छोटे टेरिटरी को मिला के बड़ा टेरिटरी कर दिया, तब जो इटालियन लोग थे इनके मन में फूटा लड्डू। कौन से टाइप का लड्डू? वो लड्डू था वननेस। That laddu was of oneness. Oneness in the sense single. From these many years, we peoples are dividing into small territory. We are speaking same language. We are watching, celebrating same festivals which are comes, and we belong to same religions. Even though we were used to live separately, ये वननेस वाली फीलिंग लोगों के अंदर, अरे हम तो एक हैं यार, ऐसा एक फीलिंग नेपोलियन के इन्वेशन के बाद लोगों को आया। इसके बाद जो बड़े बड़े टेरिटरी नेपोलियन ने बनाया था, इसके अंदर क्या हुआ, टेरिटोरियल ट्रेड शुरू हो गया। मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान लेने लगे। इसके जगह क्या हुआ, लोग एक दूसरे से और ज्यादा मिले। जैसे एक दूसरे से और ज्यादा इटली में लोग मिले तो इनके अंदर ना यूनिटी वाली फीलिंग और आने लगी। मतलब कहीं ना कहीं नेपोलियन ने स्मॉल टेरिटरीज को मर्ज करके बड़ा टेरिटरी बनाया अपने फायदे के लिए। मगर ये फायदा कहीं ना कहीं इटालियन लोगों को, उनको लगा कि दैट वी आर वन, वी आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। So this is what the role of what Napoleon in the Italy unification. This is the stage one. लोगों के अंदर फीलिंग आ रही है कि भाई हम तो एक है, राइट। इसके बाद समझ में आ रही है ना सबको। इसके बाद आता है कांग्रेस ऑफ वियना 1815। what happened? Britain, Prussia, Russia, Austria, these all 4 countries started thinking, अरे ये नेपोलियन धीरे धीरे पूरे एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा यूरोप उसका हो जाएगा, ऐसे तो हम सहन नहीं कर सकते, चलो चारों मिलके क्या करेंगे, नेपोलियन को हराते हैं। तो इन दैट केस जाते हैं, नेपोलियन को क्या करते हैं, झुस करके गन मारते हैं और नेपोलियन मर जाता है। चारों की जगह ये अकेला कुछ नहीं कर पाता। तो एनीवे नेपोलियन हार जाता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन defeated. We have studied. This is a NTSC question. Where, in which battle Napoleon has defeated? What are the countries comes together to defeat Napoleon? This is NTSC questions. You have to understand. Britain, Austria, and Prussia, and Russia. These are the 4 countries comes together and fought against the Napoleon in the battle of Waterloo. So anyway,
वहां पे हार जाता है। फिर इनकी मीटिंग होती है जिसको हम कांग्रेस ऑफ वियना बोलते हैं। और कांग्रेस ऑफ वियना का मीटिंग क्या होता है? कांग्रेस ऑफ वियना में ये होता है कि दिस ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया कम्स टुगेदर इन सिटिंग, दे वर डिस्कसिंग दैट ये जो ऑस्ट्रिया ने क्या नेपोलियन का स्टेट है, इसमें से कौन कितना लेगा, किसको क्या दिया जाएगा, कौन कितना बांट के लेगा, मतलब बंटवारा होने के लिए ये कांग्रेस ऑफ वियना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1815। और फाइनली इटली के जो किंगडम थे, जो नेपोलियन, उससे पहले तो छोटे छोटे टेरिटरी में बटे थे, और जब नेपोलियन आया सबको मर्ज करके बड़ा बड़ा टेरिटरी बनाया। फिर से जब कांग्रेस वियना 1815 में हुआ, फिर से इनको क्या कर दिया, बांट के फिर से छोटे छोटे टेरिटरी बना दिया गया। अभी आप बोलो कि साहब आप जैसे चाहोगे वैसे करोगे, हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? नेपोलियन जी आए वैसे कर दिए, आप आए फिर से टुकड़ों में बांट दिए, मतलब हमारा कोई वजूद नहीं। ये कहीं ना कहीं खटकने लगा किसको? इटालियन लोगों को। ये भी एक रीजन था इटली यूनिफिकेशन होना। लोगों के अंदर विद्रोह का भावना शुरू हो रहा है, लोगों के अंदर विद्रोह का भावना शुरू हो रहा है, which I am speaking. I think people are enjoying and what listening. Then Yes, sir. what happened? विद्रोह की भावना अभी इनके अंदर आ रहा है। क्यों? कि जो आया जैसे चाहे वैसे हमको करके चला गया, भाई ऐसे कैसे होगा, हम नहीं सुनने वाले। In this way we can say this is also Congress of Vienna, also one of the reason for the unification of Italy. Then next point comes what? Next is that द इटली के यूनिफिकेशन जो मैंने कल आपको दिखाया था, ये देख लीजिएगा कि धीरे धीरे पूरा इटली कैसे यूनिफाइड हो रहा है। आप अपना नजर इस पे बनाए रखें, ठीक है? एक बार ये हो जाए। और यहाँ पे जो हम इटली के यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इटली के यूनिफिकेशन जो पढ़ने वाले हैं, हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे। 1858-59 में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर होती है और लोम्बार्डी इंटीग्रेट हो जाता है, जो हमने कल डिस्कस किया था, फिर भी आज अच्छे से डिस्कस कर लेंगे लोम्बार्डी कैसे इंटीग्रेटेड हुआ। पहला फेज ये होता है। सेकेंड फेज वॉज 1860। इन 1860 Parma, Modena, Tuscany, Naples and Sicily, this all the territory इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो, राइट है? ये ऑल द टेरिटरी क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो। उसके साथ साथ 1860 में इंटीग्रेशन ऑफ वेनिस, 1871 में रोम, मतलब ये वेनिस जो है ये क्या होता है? 1866 में देखो ग्रे हो गया। उसके बाद पेपल स्टेट रोम 1871 में क्या होगा? फाइनली इंटीग्रेटेड हो जाएगा और रोम को इटली का कैपिटल बना दिया जाएगा। These are the 3 stages of Italy unification which we are going to study, right? तो अभी आप लोग तो एक एक स्टेज का स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल है, तो इन दैट केस वंस ये कंप्लीट हो जाए तो सेम वीडियो आपका अपलोडेड रहेगा यूट्यूब में भी। ये जो वीडियो में आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, सेम थिंग अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी ये सब का नोट्स बना सकते हो, कब कौन सा टेरिटरी आया। मैं आपको और एक चीज क्लियर कर दूं, ये इटालियन यूनिफिकेशन जो है, इट इज नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट फॉर द क्लास 10th, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द world history which has been asked in the various competitive examinations. I am not telling any one competitive examination. वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन आना है, तो उसमें से इटली यूनिफिकेशन से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इसीलिए मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसीलिए मैं बहुत तैयारी करके ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, या आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप एक्सक्यूज में बोलिएगा, मैं रुक जाऊंगा। मुझे धीरे धीरे थोड़ा आवाज आती है तो मैं नहीं समझ पाता क्या कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है? तो अब स्टेज 1, हाँ बोलो सर। वो जो टॉप राइट कॉर्नर में जो डेट्स आ रही है, हाँ सर वो आप कौन सी वेबसाइट से निकाले हो? क्योंकि सर हमको जब टाइमलाइन बनाना होगा तब ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है? यस सर, व्हाट्सएप में दे दूंगा आपको इमेज, ओके? तो लेट्स डिस्कस
stage by stage that how Italy has unified. Okay, so stage one we will discuss now. The stage one what? Before entering into the stage one, let's discuss something about the Italy. In 19th century, as you know, 1848, complete Europe, the revolution was broken up in every part of the Europe. Peoples were comes to know, as we have discussed, फ्रांस को छींक होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है, जो बात बोली गई पूरे फ्रांस में 1848 में क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन छिड़ गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग जितने भी हैं ये सब राइटर्स है, थिंकर्स है, ये सब छोटे छोटे पैम्पलेट बना रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनाएगी, जैसे हमारे भारत में सुभाष चंद्र बोस जी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, वहां पे भी सीक्रेट सोसाइटी बनाए। मगर भारत में इंडिपेंडेंट ब्रिटिश से लेना था, वहां पे इंडिपेंडेंट उनके रूलर से उनको लेना था, डेमोक्रेटिक कंट्री को एस्टेब्लिश करना था। Same, there was an important person who was known as Giuseppe Mazzini. He was known as the heart of Italy unification because he want Italy to be unified from his heart. लगे पड़ते थे, पागल थे कि मेरे इटली को मुझे यूनिफिकेशन करना है, यूनिफाइड करना है. That is why he was known as the heart of what Italy unification. We will discuss about him. ये एक लॉयर थे और पॉपुलर राइटर भी थे, कौन, गिसेपे माजिनी, और इनने बनाया था यंग इटली, इनने बनाया था यंग इटली इन 1831. he framed what young Italy, and young Italy was a revolutionary group like our Subhash Chandra Bose, INA, Indian National Army. The same here, Young Italy was formed by the Giuseppe Mazzini. It was a revolutionary group who was completely active in the various revolutionary activities in the Italy in 1848. तो मैजिनी को बार बार ये सब एक्टिविटी के चलते क्या कर रहा था, एक्साइल कर दिया जाता था. He used to hide in the France, and from there also he used to send very small pamphlets, patriotic pamphlets. He used to send to वो जो नेशनलिज्म बनाया गया ना, वो बरकरार रखना था, इसीलिए छोटे छोटे पैम्पलेट भेजा करते थे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बरकरार रखना ये चाहते थे. Many patriotic pamphlets from the France, because he used to be exiled many times from the Italy because he is doing revolutionary activities there. So he has a republican ideology. What do you mean by the republican ideology? Republican ideology in the sense, after unification of the Italy, Mr. Giuseppe Mazzini wants a republic type of country. He didn't want a constitutional monarch. He wants a republic, democratic republic country, right? This is what his republican ideology we can say. In 1848, the revolution which was spread across the Europe, he was also doing the revolt during that time. 1849, he was managed to control the Rome area. I told the Papal State area, you can remember. He was managed to get that area because in his Young Italy army, he has 60,000 members who were attacked on Rome, and they managed to capture the Rome under them. But as I said, Pope has the protective side of the support of France, and France sent his armies to the Naples state. That is why what happens, that is why बोलना यही है कि माजिनी का जो सपना था वो फिर से चूर मार होके नीचे गिर गया, राइट? तो 1849 में he was somewhat managed to occupy on the Rome, but Rome has taken the help of France. That is why Giuseppe Mazzini. इसीलिए Giuseppe Mazzini was known as the heart of Italy unification. Then one more person comes, Count Cavour. Count Cavour is known as the brain of Italy unification. मतलब दिमाग बहुत ज्यादा था. So why he was known as the brain of Italy unification? Let's discuss. In your textbook it was given that Chief Minister Count Cavour, but it is the Prime Minister Count Cavour, because initially he was appointed as Chief Minister, but later on, due to his ability, he was
promoted to the prime minister of the Italy under the Victor Emmanuel II in 1852. In 1852, he was promoted to the prime minister and he became the prime minister under the king of Victor Emmanuel II. He has found a newspaper which was known as Risorgimento. The name is what meaning of that? It was a rebirth. And he was very talented and very good human being. In his territory, he has given civil right to the people. ऐसा बहुत कम होता है किसी भी मोनार्क कंट्री में, किसी भी डिक्टेटर कंट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि वहां पे सिविल राइट दिया जाए, वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतने जोर से किया जाए. ये कोई भी एक मोनार्क या डिक्टेटर कंट्री में हाईली इम्पॉसिबल है. मगर पीडमोंट सार्डिनिया जो इनका इलाका था विक्टर इमानुएल II का, वहां पे ये राइट्स दिए गए थे, सिविल राइट्स दिए गए थे. किसके द्वारा? काउंट कावोर के द्वारा. एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज देयर व्हिच वाज यूजुअली nobody used to give at that time. That is why we can say he was a good human being. He wants a real development of its citizen. And he was very diplomatic. He was very good in the diplomatic skills. As we were discussed, what is the diplomatic skill? 2014, our Modi ji has got become a prime minister. Then what he has done in the initial stages of his prime ministry? He started visiting across the world, different countries. What he gained from that? Nothing he has gained. We can say the thing what he was gained, or our country has gained, we can count it. But the friendship, the trust which he has owned during that time, that reflects now. We can see. इतने जो फ्रेंडशिप बना लिए थे कंट्री से, फ्रेंडशिप बना लिए, और जब हमको आपदा आई, जब हमको मुसीबत आई, तब क्या होता है? पूरा कंट्री हमारे बिहाफ में खड़ा हो. इसको बोलते हैं गुड डिप्लोमैटिक स्किल, which Count Cavour was very good in it. Very good in it, the diplomatic skill which he used. मगर कैवोर का पॉलिसी कैसे? यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपब्लिकन आइडियोलॉजी गिसिपी मार्जिनी जी का था, मगर यहाँ पे काउंट कैवोर जी का जो पॉलिसी है वो कैसा है आपको पता है? ये भाई साहब चाहते थे एक बार इटली यूनिफाई हो जाए, यहाँ पे तो मैं राजा विक्टर इमानुएल को ही बनाऊंगा. अभी बताओ, समझ में आया? ये चाहते थे कि एक बार इटली पूरा यूनिफाइड हो जाए. पीडमोंट सार्ड में तो छोटा सा है, एक बार पूरा इटली एक हो जाए, यहाँ पे मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और मेरा राजा विक्टर इमानुएल II ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा. अभी आप समझो, ये चाहते थे यूनिफाइड कर दो, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाली गवर्नमेंट लाओ, ना कि रिपब्लिक वाली गवर्नमेंट. जो गिसिपी मार्जिनी चाहते थे वो काउंट कैवोर नहीं चाहता, मगर इन दोनों का सेम गोल था कि इटली को यूनिफाइड किया जाए. दिस इज व्हाट वी कैन से काउंट कैवोर्स पॉलिसी. राइट? तो फेज 1 हम डिस्कस करते हैं. अभी फेज 1 में क्या हुआ, फेज 1 में क्या हुआ एक बार डिस्कस करते हैं. ठीक. देन नेक्स्ट वॉच क्रिमियन वॉर. अभी क्रिमियन वॉर क्या है मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं बेटा. कल जैसे समझे थे तो आज अच्छे से बड़ा पिक्चर थोड़ा बना दिया कि समझ में आ जाए. तो लेट्स लिसन दैट. देयर इज अ रशियन एम्पायर, देयर इज अ रशियन एम्पायर ड्यूरिंग दैट टाइम एंड देयर वाज एन ऑटोमन एम्पायर. दिस इज रशियन एम्पायर एंड दिस इज द ऑटोमन एम्पायर. इन दोनों के बीच में क्या था? झगड़ा था. दे वर द ग्रेट एनिमी ऑफ ईच अदर during that time. These peoples are the great enemy of each other during that time. Then why they are the enemy? हर कोई चीज का एनिमी का कुछ तो होगा कारण. तो why they were enemy? एनिमी होने का मेन कारण था this island, this which was known as Crimean Island, which was known as a Crimean Island.
Here Russia wants to get control over these islands, and whereas Ottoman emperors also want control over these islands. Both want the control over this island. That is why this is known as the Crimean War. That is why there was a war. But ऑटोमैन एम्परर्स के साइड में एक चीज हो ना, रशिया ऑटोमैन एम्परर इसको अटैक करके अपने अंडर ले रहे थे, किसी को कुछ क्या बोलते थे, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जलन हो रही है, किसको किसी को कुछ नहीं जलन हो रहा था, मगर एक चीज जलन हो रहा था, रशियन एम्पायर ये आइलैंड को ले जाए, कोई तो था जो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, जल रहा था। जैसे आप में कोई बिहाइंड द सीन होगा, बोल रहा होगा क्या हिस्ट्री पढ़ा रही है और दिमाग खराब हो रही है, समझ में नहीं आ रही है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है यार। इंजेक्शन लेना सबको पसंद नहीं है, मगर इंजेक्शन लेना जरूरी है बुखार को निकालने। वैसे ही हिस्ट्री इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो एनीवे, तो रशिया ये आइलैंड ले युद्ध करके, किसी को तो ये बात खलग रहा था, अखल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो कौन थे वो? ये भाई ब्रिटेन और फ्रांस थे। ये दोनों ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो दोनों थे, ये दोनों नहीं चाहते थे कि रशिया टेरिटोरी को अटैक कर करके क्या करे, अपने आप में इतना बड़ा साम्राज्य बन जाए कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। बस समझ लो, रशिया धीरे 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 अटैक कर करके इतना बड़ा साम्राज्य बन जाए कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता? ब्रिटेन और फ्रांस। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों ने क्या किया, ऑटोमैन एम्परर के साइड में ज्वाइन किया, रशिया के अगेंस्ट में फाइट करने। किसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए? रशिया के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए दोनों ने ज्वाइन किया ऑटोमैन एम्परर के साइड। कौन? फ्रांस और एक साइड ब्रिटेन। किसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं? रशिया के खिलाफ युद्ध चालू। इसी बीच अब मैंने आपको बताया था डिप्लोमेटिक स्किल काउंट ओवर का बहुत अच्छा है, तो इस बीच काउंट कावोरजी ने बोला हम तो सार्डिनिया, पिडमोंट सार्डिनिया है, ये बोले भैया फ्रांस, भैया ब्रिटेन, मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको रुको, आप अकेले कहाँ जा रहे हो यार, थक जाओगे, कोई मार देगा गोली वोली, मैं भी आ रहा आपके पीछे, चलो। कावोर साहब ने क्या बोला, अपनी फ्रेंच आर्मी को भी इनके पीछे पीछे, अपनी पिडमोंट सार्डिनिया के आर्मी को भी इनके साथ साथ बोला जाइए। हमारे आर्मी गए, ब्रिटेन, फ्रांस, पिडमोंट सार्डिनिया, ऑटोमैन एम्परर सब मिलजुल के क्या रशिया के साथ युद्ध करते, रशिया के साथ युद्ध करते। और ये युद्ध में इन दिस वॉर रशिया डिफीटेड। कौन डिफीटेड? रशिया डिफीट हो गया, हार गया। रशिया डिफीट होने के बाद, ये स्टोरी को अच्छे से सुनना, रशिया डिफीट होने के बाद अभी ये फ्रांस और ब्रिटेन बोलते हैं कि भाई ऑटोमैन एम्परर, हमने तो तुम्हें हेल्प किया तो हमारा भी कुछ बनता है। हर चीज होता था उस समय, किसी के साथ आप युद्ध करोगे तो आपको भी कुछ टेरिटरी दाग दे दिया, तो वैसे कुछ होता है। तो इनका शुरू होता है एक मीटिंग, बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी। क्या हुआ? ट्रीटी एक साइन होता है, वो ट्रीटी पेरिस में साइन होता है, और वहां पे काउंट कावोर जी को भी क्या बोला जाता है, भाई साहब आप भी इनवाइटेड है, आइए। काउंट कावोर साहब भी क्या करते हैं, करके जाते हैं। फिर मिलता है क्या, डेफिनेटली बुलाए गए हैं तो माइक मिलेगा, और जैसे उनको माइक मिलता है माइक पकड़ते हैं, रोना चालू, भैया हम तो बहुत मुसीबत में हैं, हमारे बगल में जो ऑस्ट्रिया है, लॉम्बार्डी, वेनिस, फार्मा, मॉडर्ना, टस्कनी में अपना राज जमा रहा है, हमारे लोगों को अलग थलग करके रख दिया है, हमको हेल्प करो नहीं तो हम मर जाएंगे। मतलब काउंट कावोर जी क्या करने लग गए, अपना रोना रोने लग गए वो मीटिंग में जैसे ही माइक मिल गया। कुछ लोगों को माइकोफोबिया होता है, मतलब माइक पकड़ा दो तो बोलने लग जाते हैं, भाई कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइक जैसे काउंट कावोर को मिला तो इनने अपना रोना रो लिया,
जैसे ही अपना रोना वहां पे रोया, नेपोलियन थ्री, भतीजा ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का एम्परर था उस समय, समझे? नेपोलियन थ्री जो फ्रांस का भतीजा था, सॉरी, नेपोलियन का भतीजा था और फ्रांस का रूलर था। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन थ्री के आंख से आंसू टपकने लग गए, धीरे धीरे धड़क धड़क आ रहे, क्योंकि सुन रहा है और रो रहा है, बहुत पैथेटिक हो गया। खड़े होके इमीडिएटली बोलता है, ये काउंट कावर, तू रो मत भाई, मैं तेरे साथ, तुझे कुछ भी दिक्कत आए मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तू मेरे मुसीबत के समय तू मेरे साथ खड़ा था और मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ब्रिटेन भी इसके साथ साथ बोल दिया कि मैं भी तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मतलब इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्किल, राइट? इसके बाद क्या होला, पर जब भी ऑस्ट्रिया के अंदर अटैक होगा तब हम तेरे को हेल्प करेंगे। इस बीच क्या होता है, काबोर साहब आ गए, पूरा जोर शोर से हेल्प लेके आ गए। डिप्लोमेटिक स्किल के थ्रू जो हेल्प ने अचीव किया, मिल गया ब्रिटेन और फ्रांस को। फ्रांस बहुत पावरफुल था, ऑस्ट्रिया भी पावरफुल था। आने के बाद जो हमने देखा था मैप में, वेनिस, लंबार्डी, पार्मा, टस्कनी और मॉडेना, ये 5 जो एरिया ऑस्ट्रिया का था, भले ही वो 3 एरिया क्लाइंट स्टेट थे मगर 2 उनका था, तो ये 5 स्टेट में कैवोर साहब ने क्या किया आपको पता है? कैवोर साहब ने भेजा अपने आदमी, बोले आप लोगों से बात करने लगे, लोगों को बोले, अरे यार आप कैसे लोग हो यार, आप लोग इटालियन हो और कोई ऑस्ट्रियन आपको रूल कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है आपको? आप लोग सब फ्री होना चाहो, क्या उसके अंडर में रह रहे हो तुम लोग? मतलब धीरे धीरे जहर फैलाने लगा, के खिलाफ, ऑस्ट्रियन एम्परर के। कहीं कानो कान खबर पहुंच गई ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया में तब हब्सबर्ग एम्पायर रूल करते थे, तो कानो कान उनको खबर पहुंच गई। जैसे उनको खबर पहुंची, उनने कैवोर को बोला, ए कैवोर, ज्यादा उछल रहा है तू, मेरे टेरिटरी में घुस के मेरे लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? कौन बोला? ऑस्ट्रियन एम्पायर, हब्सबर्ग एम्पायर ने किसको बोला? काउंट कावर। काउंट कावर बोले इनको तो भाई युद्ध करना था हर हाल में, मगर कांटे का जो दीवार होता है उसमें कपड़ा बिछाओ और खुद झगड़ा लगो, झगड़ा करने का एक नया तरीका। दूसरों के घर में जो कांटे का दीवार होता है उसमें कपड़ा डाल दो, कपड़ा टूट फट जाएगी, फिर तेरे दीवार की वजह से मेरा कपड़ा फट गया। वैसे ही काउंट कावर जी को तो लड़ाई करनी थी, किससे? ऑस्ट्रिया से। इसीलिए वो जानबूझ के चूहे तरह उनके कंट्री में घुस जाते और लोगों को भड़काते। वैसे क्या हुआ, फाइनली ऑस्ट्रिया ने पीडमोंट सार्डिनिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया भाई? वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही इसने वॉर डिक्लेयर किया, उस समय फ्रांस जो इसको वादा किए थे, जो क्रीमियन वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी, वो वादा के मुताबिक फ्रांस डजंट हेल्प ऑस्ट्रिया। फ्रांस किसके साइड खड़ा हो गया? पीडमोंट सार्डिनिया के खिलाफ साइड में खड़ा हुआ और ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हुआ? हार गया। ऑस्ट्रिया जैसे हारता है तो नाइस और सैवॉय बोल के, मतलब उस समय ऑस्ट्रिया क्या करता है, लोम्बार्डी को अपने एरिया ले जाता है। और ऑस्ट्रिया का जो विनिस है, मैं आपको यहाँ मैप दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक बार मैप में लेके अच्छे समझा देगा। तो यहाँ समझना, देखो ये था पीडमोंट सार्डिनिया, ये था पीडमोंट सार्डिनिया, और यहाँ पे लोम्बार्डी था और यहाँ था विनिस, और ऑस्ट्रियन एम्पायर यहाँ थे। यहाँ पे और 2 छोटे छोटे टेरिटरी थे, एक थे नाइस और एक वेंस था। तो ये 2 टेरिटरी जीते, काबॉय और नाइस, ये जो 2 एरिया था यहाँ पे, और ये जो लोम्बार्डी था, ये पूरा एरिया इनने जीत लिया। किससे? ऑस्ट्रिया से जीत लिया। ऑस्ट्रिया के अंडर था, ऑस्ट्रिया से इनने जीत लिया। और ये जो वेनिस था, वेनिस ये लोग जीत नहीं पाए थे, पहले वॉर में जीत नहीं पाए थे, मगर ये जो लंबाडी एरिया और छोटे छोटे जो टेरिटरी ऑस्ट्रिया से ये छीन लाए थे। कौन लाया था? जो फर्स्ट वॉर हुआ था इसमें इन लोगों ने जीत लिया। इसके बाद कैवोर कितना डिप्लोमेटिक खेल रहे, देखो, बोल ले भाई तुम नाइस और सवय तुम ले लो,
नाइस और सवय तुम ले लो, तुमने मेरे को हेल्प किया, मैं तुमको गिफ्ट में देता हूँ। उस समय बात यही था कि आप लोग टेरिटरी जैसे बढ़ेगा तो आप उतने पावरफुल माने जाएंगे जितनी टेरिटरी आपके पास। तो गिफ्ट में नाइस और सवय दे दिया गया, इसको फ्रांस को उस समय दे दिया। इसके बाद क्या होता है, लंबार्डी वेनिस वेर इंटीग्रेटेड बाय कैवोर टू द थ्रू द ऑस्ट्रियन रूलर, क्योंकि वेनिस आया नहीं था। ऑस्ट्रिया वांट कावर टू डिक्लेयर वॉर ऑन सार्डिनिया, जो मैंने आपसे डिस्कस किया फेज 1 में। यहाँ पे पूरी चीजें वही सब चीजें यहाँ पे, मगर एनीवे जो इसको मिलता है फेज 1 में, लॉम्बार्डी जो मिलता है वो एक ही जगह किसको मिलता है, इटली में यूनिफाइड हो जाता है, मगर पीडमोंट सार्डिनिया में लॉम्बार्डी यूनिफाइड हो जाता है, बाकी एरिया जैसे के जैसे अलग ही है। बात समझ लो। तो फेज 1 में क्या होता है, सिर्फ लॉम्बार्डी क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है इटली। तो हम बोलेंगे फेज 1 यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज व्हाट, यूनिफिकेशन ऑफ लॉम्बार्डी टू द इटली, दैट इज व्हाट फेज 1। देन फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में जैसे आते हैं, फेज 2 में आप देखना कि उस समय जैसे बहुत सारे जो लोग थे, जैसे लॉम्बार्डी इटली में मिल गया, लॉम्बार्डी इटली में मिल गया और वेनिस अभी तक आया नहीं था, वेनिस ऑस्ट्रिया के पास ही था। तो लॉम्बार्डी जैसे आया तो फार्मा, मोडेना, टेस्कनी, पेपल स्टेट के बहुत सारे स्टेट के जो लोग थे, ये लोग भी अपने आप में विद्रोह करने लग गए कि नो, वी डोंट वांट टू बी अंडर द ऑस्ट्रियन एम्पायर, वी वांट टू इंटीग्रेट विद द इटालियन एम्पायर। Italian Empire, the Piedmont Sardinia, we want to integrate it there. We don't want to be under the part of Austrian Empire. तो लोग विद्रोह करने लग गए। इसमें ऑस्ट्रिया ने हेल्प चाही किसकी, फ्रांस की, ब्रिटेन की, ये दोनों ने बोले नहीं भाई हम हेल्प नहीं करेंगे, हमने पीडमोंट सार्डिनिया को क्या जवाब दे दिया। तो एनीवे इस बीच इन सब नाटक जो हो रही थी, ये सब कौन, काउंट कावोर्जी देख रहे थे, और काउंट कावोर्जी क्या बोले, धीरे से चुपके आए, बोले हम प्लेबिसाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, we will do the plebiscite. Plebiscite meaning is what is the exact meaning of plebiscite? Plebiscite is that asking the people's their decision by the voting, asking the people their decision by the voting, they will be asked to vote whatever they want. टू थिंक जो बोल रहे थे उसके भी रखा जाएगा, और जिसके फेवर में आपको जाना है आप वोट देके आ सकते हो, उसको प्लेबिसाइड बोला जाता है। तो उस समय क्या हुआ, प्लेबिसाइड शुरू होती है, प्लेबिसाइड होती है, एंड देन दिस फार्मा, मॉडेना एंड टस्कनी, फार्मा, मॉडेना एंड टस्कनी, these three areas peoples were giving vote in the favor of joining Italian state rather than joining the Austrian Empire. ऑस्ट्रियन एम्पायर को इनको ज्वाइन करना नहीं था, इनको ज्वाइन करना था कहाँ पे, पीडमोंट सार्डिनिया। तो इनने वोट दिया यहाँ ज्वाइन करने के लिए, पीडमोंट सार्डिनिया। तो इस तरीके से ये 3 एरिया क्या हो गए, यहाँ आ गए, और कुछ पेपल स्टेट के एरिया भी थे, वो भी कहाँ इंटीग्रेट हो गए, इटली में हो गए। अभी आप देखो, हम जैसे जो मैं जिप आपको दिखा रहा था ना टाइमलाइन का, वो सेम हम स्टेज बाय स्टेज आ रहे हैं। पहले लंबार्डी आ गया, फिर ये 3 प्लेबिसाइड के जरिए आ गए, और कुछ पेपल स्टेट के एरिया भी प्लेबिसाइड के जरिए इंटीग्रेट हो गए। यहाँ से इंटीग्रेट हो रहा है एक एक, देख लो। नेपोलियन एंड सिसिली वर रूल्ड बाय द बourbon डायनेस्टी, रिलेटिव ऑफ नेपोलियन 3। अब मैंने आपको बताया था नेपोलियन 3 के रिलेटिव जो स्पेन के हैं वो रूल कर रहे हैं। अभी ये तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है किसके लिए, कैवोर के लिए यहाँ पे घुसना। क्यों, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, अब फ्रांस से हम दोस्ती कर रही हैं, अभी इससे झगड़ा मोड़ लेंगे क्या। तो आफ्टर नॉर्दर्न यूनिफिकेशन, ये नॉर्दर्न को यूनिफिकेशन करने के बाद पीपल ऑफ साउथ वांटेड टू यूनाइट, मतलब यहाँ के जो साउथ के लोग थे ये भी चाहते थे कि इनको यूनाइट होना था, इटली यूनिफाइड, इटली के साथ, किसके साथ, इटली के साथ ही यूनिफाइड होना था, लोग चाह रहे थे। बट हाउ टू गेट them joined to the Italy without angering